A very good morning, class 9th. Welcome back to Path Online Tutorials. Students, before September exams, we already started Unit 3rd Digital Documentation and we were doing chapter number 6 Formatting a Document. Students, what do you mean by formatting? Formatting means changing the appearance of a text. If you want to change the appearance of the text, then you can perform formatting features on a document. Okay, and how many types of formatting? Yes, do you remember? There are 3 types of formatting. That is character formatting. Yes, character formatting, and next is paragraph formatting, and third one is your page formatting. Yes beta, before exams we have already covered character formatting and paragraph formatting. बच्चे character formatting क्या होती है? क्या होता है बच्चे character formatting? Yes, character formatting focus on the appearance of individual characters. ठीक है, appearance of an individual character means if you want to change the color, size, appearance of the characters, then you can apply character formatting. Yes बेटा, character formatting के जितने भी features हैं, they all come under your font group in home tab. आपने सब अप्लाई किए थे? Yes. बोल्ड करना हो किसी टेक्स्ट को, इटैलिक, अंडरलाइन, you can change the style of the text, you can change the size of the text, you can apply other features like you can apply strike through, double strike through, superscript, subscript, outline. All these are the character formatting features that you can apply to change the appearance of the text. और ये सब किस में मिलते हैं? That all comes under the font group of home tab. ठीक है, हमने ऑलरेडी ये सारे फीचर्स अप्लाई कर लिए थे. एंड टू अप्लाई एनी फॉर्मेटिंग फीचर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है आपको? यस, यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. सिलेक्शन करने के बाद ही आप किसी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग फीचर क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट हमने किया था, दैट इज, हाँ जी, नेक्स्ट हमने किया था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैराग्राफ फॉर्मेटिंग? yes students, remember, yes, paragraph formatting is the most important factor in overall appearance of the document. In paragraph formatting you can apply text alignment. yes, text alignment set कर सकते हो आप. कौन कौन सी text alignment होती है? yes, you can align the paragraph to left, center, राइट एंड जस्टिफाई. ठीक है, आपको किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है एंड यू कैन अप्लाई द अलाइनमेंट्स. इसके बाद यू कैन ऑल्सो सेट द लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट. यू कैन ऑल्सो अप्लाई द बॉर्डर एंड शेडिंग टू द पैराग्राफ. For example, I already selected this paragraph and you can apply the border with the help of border option available in the paragraph group. Yes, अगर आप इस पैराग्राफ को बॉर्डर करना चाहते हैं तो you can apply border. Yes, इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं? You can also set the background color of this paragraph. Okay, you can set the background color. इसके साथ साथ आप किसी भी पैराग्राफ पर सिलेक्शन के बाद you can also apply the indentation. Students, do you remember what is indentation? Yes, क्या होती है indentation? Indentation means the distance between the margin and the written text. ये देखो, यहाँ तक आपका मार्जिन सेट है. ओके, इसके बाद आपने कुछ डिस्टेंस दिया है रिटन टेक्स्ट में. ओके, नाउ दिस डिस्टेंस बिटवीन द मार्जिन एंड द रिटन टेक्स्ट इज कॉल्ड, yes, that is called
indentation. So you can decrease the indentation or you can also increase the indentation. अगर आपको यही डिस्टेंस मार्जिन से कम करना है रिटन टेक्स्ट का तो आप उसको डिक्रीज इंडेंटेशन पे प्रेस करेंगे. इफ़ यू वांट टू इंक्रीज इंडेंटेशन तो आप इंडेंटेशन की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, इन दिस वे यू कैन अप्लाई द वेरियस पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फीचर्स. इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि हाउ टू अप्लाई द बुलेट्स and numbering. If you want to create a list, ordered or unordered list, so you can create that list with the help of numbers or bullets available in the paragraph group in home tab. So all these are the features that are related to your character formatting and paragraph formatting. हाँ जी, ये हम सब क्या कर चुके हैं, ऑल दीज फीचर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. सो आवर टुडेज टॉपिक इज थर्ड टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग एंड दैट इज कॉल्ड योर पेज फॉर्मेटिंग. सो बच्चे, टुडे वी विल लर्न व्हाट इज पेज फॉर्मेटिंग and what you can do with page formatting. The very first one is we can set the size of the page, we can set the orientation of the page. Next is we can set the margins. ठीक है, हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, हम पेज ब्रेक लगा सकते हैं. We can also insert header and footer and how to insert header and footer and आप उस हेडर एंड फुटर में क्या क्या अप्लाई कर सकते हो ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में. ओके, सो ये टॉपिक आज दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट पेज फॉर्मेटिंग फीचर इज वी कैन अप्लाई द पेज बॉर्डर एंड पेज शेडिंग. एंड नेक्स्ट, हाउ टू डिवाइड अ पेज इनटू डिफरेंट कॉलम्स. सो वी कैन सेट ऑल दीज फीचर्स विद द हेल्प ऑफ page formatting. So is it clear? What is page formatting? Whenever we want to change the appearance of a page, अबे हमें कैरेक्टर की अपीयरेंस को चेंज नहीं करना, टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज नहीं करना, हमें किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ की अपीयरेंस को चेंज नहीं करना. वी वांट टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ होल पेज. हम पेज के साइज़ को सेट कर सकते हैं, पेज की ओरिएंटेशन को, मार्जिन को सेट कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो डिवाइड द पेज इनटू डिफरेंट कॉलम्स एंड वी कैन अप्लाई द पेज बॉर्डर्स एंड पेज शेडिंग. सो ऑल दीज आर द फीचर्स दैट आर रिलेटेड टू पेज formatting. So we will discuss these features one by one and all these features are available in, हाँ जी, कहाँ अवेलेबल होते हैं, डू यू नो? ऑल दीज फीचर्स आर अवेलेबल इन पेज लेआउट टैब. पेज फॉर्मेटिंग फीचर्स आर अवेलेबल इन पेज लेआउट टैब. So now we will discuss these features one by one. So students, let's start with the first page formatting option, that is setting the page size. Yes, to perform page formatting, first of all we have to click on the page layout tab. Okay, after clicking on the page layout tab, you want to set page size, so go to this page setup group, and this, the third option is size. From here you can choose a paper size. ठीक है, आप जो पेपर का डिफ़ॉल्ट साइज होता है दैट इज़ 8.5 इंटू 11 इंचेस एंड दैट इज़ लेटर. ठीक है, अब बच्चे हमें ये पेज साइज़ क्यों सेट करना है? सपोज सम टाइम आपको जो प्रिंट आउट लेने होते हैं वो A3 साइज़ पे लेने हैं या A4 साइज़ पर लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू एडजस्ट द कंटेंट्स ऑफ योर पेज. उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने पेज के कंटेंट्स को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा. अब सपोज अगर आपने ये डिफ़ॉल्ट साइज़ लेटर लिया हुआ है तो चेक द प्रिंट प्रीव्यू कि आपको ये प्रीव्यू में मीन्स प्रिंटिंग के टाइम पर ये पेज कैसा दिखेगा. फॉर दिस गो टू दिस ऑफिस बटन,
click on print option and then go to print preview. Now your page will look like this at the time of printing. ठीक है, आप इसकी परसेंटेज को इंक्रीज कर लीजिए फ्रॉम जूम स्लाइडर एंड यू कैन सी द पेज हाउ इट विल लुक एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग. जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो ये पेज के ऊपर किस तरह से आपको टेक्स्ट दिखाई देगा वो दिखता है. नाउ क्लोज दिस प्रिंट प्रीव्यू. आई वॉन्ट टू चेंज द साइज. अब सपोज मुझे इसी पेपर, इसी कंटेंट का जो प्रिंट आउट है वो लेना है A4 साइज शीट पर या A3 साइज शीट पर. मुझे A3 साइज शीट पर प्रिंट आउट लेना है. नाउ सी द डिफरेंस. अगर यहाँ से आपने साइज A3 चूज कर लिया, नाउ चेक द प्रिंट आउट ऑप्शन. ओके, प्रिंट प्रीव्यू देखिए. अब इसमें देखो आपका पेपर इस तरह से दिखाई देगा. ओके, अब आपको इस कंटेंट को अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू एडजस्ट. इज इट क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन चूज दिस साइज और उसी के अकॉर्डिंग, उस साइज के अकॉर्डिंग आप अपने कंटेंट्स को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन सेट द साइज ऑफ द पेपर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. एंड what is the default size? The default name is letter and its size is 8.5 inches into 11. Is it clear? हाँ जी, एक तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट साइजेस हैं. इसके साथ साथ इफ़ यू वांट टू सेट साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस मोर पेपर साइज एंड यू कैन set the height and width of the paper from this height and width, yes, list given in the page setup dialog box. Is it clear? आप यहाँ से आप हाइट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, हाइट को डिक्रीज भी कर सकते हैं और इसी तरह आप विड्थ को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. एंड यू कैन सी द प्रीव्यू इन द प्रीव्यू विंडो. ये बॉटम पर आपका प्रीव्यू विंडो होता है. जब भी आप कोई भी फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक प्रीव्यू विंडो में दिखाता है कि आपके पेज की अपीयरेंस कैसी होगी. इज इट क्लियर? नाउ क्लिक इन दिस ओके बटन, ऑन दिस ओके बटन. Is it clear how to change the page size? So I want to change this page size to letter. Is it clear? Now the next thing is orientation. पहला फॉर्मेटिंग फीचर आपके पास कौन सा हो गया? फर्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर हमने अप्लाई कर दिया पेज साइज. यस, पेज साइज हमने डिस्कस कर लिया. yes, page size we have already discussed. Now the next feature that we want to discuss, page formatting feature, is page orientation. बेटा, now what is the meaning of orientation? Orientation, देखो आपको पेज किस तरह से, जो प्रिंट आउट है वो आपको वर्टिकली चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए. ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप प्रिंट आउट लेते हो वर्टिकल प्रिंट आउट्स आते हैं. मीन्स पेज के ऊपर जो डेटा आता है, जो कंटेंट आता है वो वर्टिकल फॉर्म में आता है. यू कैन ऑल्सो make it horizontal. means two type of orientation is there. one is portrait, जिसको आप vertical बोलते हो, vertical direction, and second one is landscape. and what is the default orientation? default orientation is portrait. ओके, आप यहाँ देखो, अभी जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन सेट है वो पोर्ट्रेट है. आप इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखिए, ये आपका पेज कैसा दिखाई दे रहा है. नाउ योर पेज इज विल लुक लाइक दिस. नाउ आई वांट टू set the orientation as landscape. Now you can check its print preview. हाँ जी, अब आपका पेज कैसा दिखा रहा है कि आपके जो कंटेंट्स हैं वो वर्टिकली, मीन्स आपका हॉरिजॉन्टल हो गया पेज. ओके, हॉरिजॉन्टल प्रिंट आउट आएंगे अब आपके पास हॉरिजॉन्टली. नाउ क्लोज दिस प्रिंट प्रीव्यू. In this way you can set the size of the paper, you can set the orientation. Now the next page formatting feature is you can set the margins. बच्चे, what do you mean by margin? Margin means, margins क्या होते हैं margins? Yes, हमने already discuss किया हुआ बेटा. ये margin is the distance between the edge of the paper and written text. इस edge of the paper और written text में कितना distance है, that is name as, yes, that is name as margin. और margin, how many types of margins are there? Yes, top margin,
ये होता है आपके पास जो आपने पेज के टॉप से और रिटन टेक्स्ट में जितना भी डिस्टेंस छोड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज टॉप मार्जिन। इसी तरह आपके पास लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। यू कैन सेट दीज मार्जिन फ्रॉम द रूलर ऑल्सो। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड यू कैन सेट द मार्जिन फ्रॉम हेयर। देखो, मैं एज ऑफ द पेपर और रिटन टेक्स्ट में थोड़ा ज़्यादा गैप देना चाहती हूँ, तो आई कैन सेट, आई एम इंक्रीजिंग द मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया रूलर बार से। ओके, एंड सिमिलरली यू कैन डिक्रीज this margin also like this from the ruler bar. Another option, you can choose from the page setup group from margin option. पहले orientation change कर लेते हैं। इस टाइम जो orientation set हुई हुई है वो landscape है। I want to change it to portrait. Now I want to set the margin. बेटा जो default margin होता है that is normal. ओके, मीन्स आपने टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट से 1 छोड़ा हुआ है। ओके, नाउ यू कैन सेट द मार्जिन फ्रॉम दीज प्री सेटेड margins, and you can also customize margin by clicking on the custom margin option. Again, page setup dialog box will appear, and from here you can set all these margin: top margin, left margin, bottom margin, right margin. You can increase or decrease the margin from here. Means you can set the distance between the edge of the paper and the written text. Which distance? Top distance, bottom distance, left distance and right distance. In this way you can set the margins. Yes, हमने थर्ड टाइप की फॉर्मेटिंग डिस्कस कर ली. दैट इज हमने डिस्कस कर लिया हाउ टू सेट द पेज साइज, हाउ what is page orientation and how many types of page orientation. Yes, 2 types of page orientation. One is portrait and second is landscape. Next is margin, we have already discussed. Now the next topic is inserting page break. Now how to insert page break? बेटा page break कैसे insert करेंगे? For this, for setting the page break, again click on the page layout tab and go to page setup group. In this, the next option, column option के बाद है आपके पास break option. Yes, from this breaks option, click on this break option and you can apply the page break. Now what is the use of this page break option? Actually बेटा whenever you write some text, ठीक है, आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो पेज के ऊपर वर्ड डॉक्यूमेंट में और आपका पेज फिल हो जाता है, तो वर्ड ऑटोमेटिकली एक पेज ब्रेक इंसर्ट कर देता है. मीन्स नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट पेज पर आएगा. देखो इस तरह से, सपोज आई एम टाइपिंग सम टेक्स्ट हेयर, ओके, आपका पेज फिल हो गया, वर्ड ने ऑटोमेटिकली क्या किया, नेक्स्ट टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पर इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया इन दिस वे. बट इफ़ यू वांट, आप क्या चाहते हो, आप किसी जगह पर फोर्सफुली पेज को ब्रेक करना चाहते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर दिस फर्स्ट पैराग्राफ, इस डॉक्यूमेंट वर्ड के बाद आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक. मुझे यहीं से क्या करना है, पेज को ब्रेक करना है. मीन्स इसके बाद का जितना भी कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज पर आना चाहिए. ओके, सो फॉर दिस यू कैन आइदर आप एंटर प्रेस करते जाओ और फोर्सफुली अपने टेक्स्ट को क्या करो, नेक्स्ट पेज पर ले जाओ, और यू कैन ब्रेक द पेज हेयर बाय यूजिंग दिस ब्रेक्स ऑप्शन. उसके लिए क्लिक ऑन द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक. नाउ गो टू द page setup group in page layout tab and click on this break option and then click on this page. ओके, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद का जितना भी टेक्स्ट है वर्ड उसे क्या करेगा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पर इंसर्ट कर देगा. इन दिस वे यू कैन ऐड अ पेज ब्रेक फ्रॉम पेज लेआउट टैब. ओके, मैंने कंट्रोल Z किया एंड
अगेन आपका वही हो गया, अगेन करना चाहते हो, सपोज आई वॉन्ट टू मेक insert a page break here, click here where you want to break a page, then go to the breaks option and then click on page. Yes, is it clear how to insert a page break? Okay, next option is I want to change the page color. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन पेज बैकग्राउंड. यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द पेज. अभी तक हमने क्या किया, पेज के मार्जिन सेट कर लिए, पेज की ओरिएंटेशन सेट कर ली, पेज का साइज सेट कर लिया, पेज ब्रेक लगा दिया. अभी कॉलम में भी डिवाइड करेंगे पेज को. ओके, उससे पहले हम पेज की बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं. In page background you can set the watermark, you can change the page color and you can apply the page border. To change the page color, click on this page color option in page background group and you can change the color from here. ठीक है, जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे वो अप्लाई हो जाएगा एज अ पेज बैकग्राउंड कलर. ओके, और इफ़ यू वांट टू चेंज द फोरग्राउंड कलर, उसके लिए तो आपको करेक्टर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी फ्रॉम द होम टैब इन फॉन्ट ग्रुप. ओके, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो इस टाइम फोरग्राउंड कलर है टेक्स्ट का वो ब्लैक है. आई वॉन्ट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ओनली. ओके, इन दिस वे यू कैन चेंज द कलर ऑफ द पेज एंड यू कैन ऑल्सो fill the background of the page by using the fill effects. For this, click on fill effects. बच्चे, आप बैकग्राउंड में ग्रेडियंट भी लगा सकते हो. ग्रेडियंट का मीनिंग होता है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स. ठीक है, और उसमें बहुत सारे शेडिंग स्टाइल्स आते हैं आपके पास कि आपको जो शेड करना है वो हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, डायगोनल करना है, डायगोनल अप करना है. इन दिस वे आप कुछ प्रीसेट 1 कलर से भी पेज का ग्रेडियंट लगा सकते हो, 2 कलर से. सपोज आई वांट टू अप्लाई 2 कलर ग्रेडियंट. ठीक है, तो यू कैन चूज 2 कलर्स फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट. ठीक है, कलर 1 आई वांट टू अप्लाई दिस कलर, फर्स्ट वन, एंड सेकेंड कलर आई वांट टू अप्लाई दिस लाइट ब्लू शेड. ओके, आपको प्रीव्यू विंडो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आपको क्या करना है. हॉरिजॉन्टल शेडिंग स्टाइल अप्लाई करना है, वर्टिकल करना है, डायगोनली करना है, डायगोनल डाउन करना है. इन दिस वे यू कैन अप्लाई ग्रेडियंट. नेक्स्ट इज पेज बैकग्राउंड में यू कैन ऑल्सो अप्लाई टेक्सचर. कुछ प्री डिफाइंड टेक्सचर्स होते हैं बेटा आपके सिस्टम में, तो यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द टेक्सचर गिवन हियर. ठीक है, जैसे ही टेक्सचर पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करोगे, योर पेज विल बी फिल्ड विद द अप्लाइड और सेलेक्टेड टेक्सचर. In this way the next method is pattern. You can also apply some pattern. अभी टेक्सचर में या फिर हम कलर चेंज कर लेते हैं या फिर ग्रेडियंट में 2 कलर चूज़ कर लेते हैं, 2 कलर लाइट शेड चूज़ कर लेते हैं. वन इज़ दिस वन एंड सेकेंड इज लाइट ब्लू शेड. नाउ इन दिस वे यू कैन फिल द पैटर्न ऑल्सो. ठीक है, अब पैटर्न में यू कैन चूज द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर. फोरग्राउंड में आई वॉन्ट दिस कलर एंड background color is light color like this. Okay, you can choose foreground and background color and you can fill your page background by any of the given texture. ठीक है, ये कुछ अवेलेबल टेक्सचर्स हैं, आप जो भी सेलेक्ट करेंगे you can apply that texture. Like ये zigzag texture I want to apply, so in this way you can apply texture also. Next is you can also fill the background of the page with any of the picture that is available in the your computer. उसके लिए you have to select the picture, you have to browse the picture जहाँ भी pictures available हैं. Suppose I want to apply this tulip picture and in this way you can also apply the picture at the background of the page. So इस तरह से आप पेज के कलर को, पेज के बैकग्राउंड को सेट कर सकते हो by using page color option. ठीक है, I want to set this color normal. Next is page border. If you want to apply border to the page, you can click on the page border option. बेटा 3 टैब्स हैं. जैसे ही आप पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, अब border and shading dialog box will appear. In this there are 3 tabs. One is border, next is page border, next is shading.
Okay, page border. I want to apply page border, a border to the whole page. Whenever you apply a border, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ पेजेस हैं, दिस बॉर्डर विल अप्लाई टू ऑल द पेजेस. और ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल कि आप होल डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना चाहते हो और ओनली यू वांट टू अप्लाई ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, और एक्सेप्ट फर्स्ट पेज आप बाकी सब पेजेस पर अप्लाई करना चाहते हो. तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज वेयर यू वांट टू अप्लाई दिस border. Okay, but before that you have to select the border type. setting set करनी पड़ेगी आपको, which the very first one setting is none. आप कोई भी border apply नहीं करना चाहते, default आपके पास none होता है. next is next is box. I want to apply a border like box. Okay, then next step is you have to choose the style. Which style of border you want to apply? You can choose from this drop down list. Next is you can choose the color of the border. Okay, and next you can choose the width of the border. Is it clear? And next is if you want to apply some art on the border, so you can apply from here. Okay, and you can see the change. जिस तरह से आप ऑप्शंस को यहाँ पर चूज करोगे, यू कैन सी द चेंज इन द प्रीव्यू विंडो. ओके, इफ यू वांट टू अप्लाई सम आर्ट यू कैन चूज फ्रॉम हियर. आई वांट टू अप्लाई दिस आर्ट. ओके, और आई वांट टू अप्लाई दिस आर्ट. in this way you want to apply to whole document or only to the first page, or you want to apply all other pages of the document except first page. So that is according to your requirement. I want to apply to the whole document and click on OK. Yes, my document is consist of 2 pages. तो ये दोनों pages पर आपका border apply हो गया. Is it clear how to apply the page color and how to apply the page border? Rest of the page formatting features we will discuss in the next tutorial. So students, you have to practice all these page formatting features. ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी आज हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स आप अप्लाई करके देखेंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी. ओके, सो स्टूडेंट्स, रिमेन safe at your home and have a nice day.